Okay, this video is about idioms on hand. Time and again, I've been making videos. I'm giving you idioms on the various parts of the body, on the various different things that we get to see in our environment. So the first idiom on hand is to be a great hand at something. First of all, two things are to be kept in mind. The first thing is that this idiom is used when you are praising someone, but in an ironic sense. आप किसी की तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन आप एक सैटारिस्टिक वे में, आयरॉनिक वे में तारीफ कर रहे हैं. जैसे अगर मैं हिंदी में अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, कुछ लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कभी भी जरूरत पड़े हमें फोन करिए आप, है ना, एक फोन करिए, हम देखिए आपका काम कैसे करवाते हैं या करवा देंगे. बट इन प्रैक्टिकल जब when you are actually in need of that person, the person flips, है ना, पलटी मार लेते हैं, या वही है ना, हाथी की दांत दिखाने के और खाने के, और वो वाली बात है यहाँ पे. To be a great hand at something, when you are praising someone or somebody who is skillful, but you use this idiom in an ironic sense. ठीक है? If I give you a statement with this, to be a great hand at something, that my friend, she is a great hand at giving advice, but when it comes to her following those advice, she kind of flip. She's not that good. ठीक है? दूसरों को सलाह तो बहुत जल्दी दे देते हैं, लेकिन जब खुद पे वो बात आती है ना, सलाह मानने की, वही काम करने की, तो ऐसे ही है. तो to be a great hand at something, you are praising somebody of the person's skill, but you will use it in an ironic sense. Moving to sentence number 2, a dab hand. Okay, a dab hand also you are praising somebody, किसी की आप skill के बारे में बात कर रहे हैं, और वो जो skill है वो ज्यादातर क्या है, प्रैक्टिकल है. ऐसा कोई काम जो हाथ से किया जाए या पैरों से किया जाए. ठीक है? A dab hand, person who is skillful and that task has to be practical. अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूं that why don't you take help of my mother-in-law, why don't you take help of my husband, as he is a dab hand in when it comes to packing things. आप मेरे हस्बैंड की मदद ले लीजिए, क्योंकि जब भी सामान पैक करने की बात आती है, सूटकेस पैक करने की बात आती है, he is a dab hand, बहुत स्किलफुल, फटाफट पैकिंग करवा देते हैं. आया समझ में? ठीक है? Next idiom, a free hand. You use this idiom when you are, when you have to say that there is no kind of restriction. ठीक है? Free hand देखिए आपको देखने में मिल रहा है. There is no restriction. किसी तरह का कोई restriction नहीं है, किसी तरह का कोई बंदेज नहीं है, है ना? Free hand. Like if I give you an example that nowadays parents are, they have given free hand to their kids when it comes to the usage of mobile phones. आजकल के माता पिता अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम दे रखी है. They have given a free hand कि वो जितने भी देर मोबाइल चलाते रहें. ठीक है? Same as applicable to school also. Every task or every smallest, minutest activity that the school is organizing, and whenever the school has to, inform about that activity to the parents, everything comes on mobile phone. मोबाइल फोन पे ऐप बने हुए हैं, छोटी सी छोटी चीज मोबाइल फोन पे होती है. तो वही है फ्री हैंड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एन ओल्ड फ्रेंड, नहीं होगा, पार्डन मी, दिस शुड बी एन ओल्ड हैंड. ठीक है? एन ओल्ड हैंड का मतलब अगेन द पर्सन इज वेरी स्किलफुल. ठीक है? एन ओल्ड हैंड बहुत ज्यादा स्किलफुल है. ठीक है? और ओल्ड लग गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि बूढ़ा व्यक्ति है, बट बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस कम्स विद एज. ठीक है? बट टॉकिंग अबाउट जेन जी किड्स, एक्सपीरियंस ना भी हो तब भी आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं, बहुत दे आर वेरी क्यूरियस, दे आर वेरी इंक्विजिटिव, फटाफट चीजें सीख लेते हैं. ठीक है? फॉर देम आल्सो यू कैन से ही इज एन ओल्ड हैंड. ठीक है? इन वेब डिजाइनिंग, or she's an old hand at making PPT presentations बनाने में, she's an old hand. वही कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा skillful है. ठीक है? It has nothing to do with the old age से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है? ये बात याद रखिएगा. To be even-handed. Now, to be even-handed means to be fair,
अनबायस्ड, जो कि आजकल देखने नहीं मिलता है ना। चाहे आप कोई भी ले लीजिए, आप कोई कहीं भी चले जाइए, आप प्राइवेट कंपनी ले लीजिए, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में चले जाइए, यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन हु इज इवन हैंडेड, है ना। बायस्ड हो ही जाता है। अनबायस्ड का मतलब है सबको एक नजर से देखा जाए। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा लॉ जो है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट शुड बी इवन हैंडेड, है ना। सबको इक्वल विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वल राइट्स मिले रिलेटेड टू एजुकेशन या कुछ भी है, तो इट शुड बी इवन हैंडेड। या if I tell you, if I give you one more example, the principal of so and so school is uneven handed person, क्योंकि वो हर एक बच्चे को एक नजरिए से देखता है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है, ठीक है। तो टू बी फेयर या अनबायस्ड की जगह अगर आप इवन हैंडेड बोलेंगे, है ना, तो वो डेफिनेटली इट विल एड ऑन टू योर स्पोकन इंग्लिश। ओके, नाउ टू बी हाई हैंडेड। हाई हैंडेड का मतलब है, या ये इडियम हम यूज करते हैं फॉर अ पर्सन हु इज ट्रिनिकल और हु इज बॉसी। ट्रिनिकल का मतलब ही वही है कि कोई व्यक्ति है, देयर इज अ पर्सन, एंड यू विल यूज इट फॉर पीपल ओनली। ये किसी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं यूज होगा इडियम। Why I'm telling you the reason, because ट्रिनिकल means to be bossy। आप सामने वाले की बात ही नहीं सुनते हो, सामने वाले का व्यू पॉइंट ही नहीं सुनते हो, ठीक है, तब हम बोलते हैं टू बी हाई हैंडेड, ठीक है। तो मैं एग्जांपल दूं दैट this is just an example. Mr. Suresh is working at a very high post in PWD department, but he was recently criticized for being high handed as he never listen to the public। वो पब्लिक की प्रॉब्लम सुनते ही नहीं है, ठीक है। या एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, द गवर्नमेंट वाज रिसेंटली क्रिटिसाइज्ड या पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द हाई हैंडेड regulations, rules and regulations that were imposed by the government, ठीक है। जो भी रूल्स और रेगुलेशंस सरकार ने बनाए वो जबरदस्ती हाई हैंडेड थे, सामने वाले का सुना ही नहीं, लोगों को समझा ही नहीं, है ना, तो प्रोटेस्ट हुआ। टू बी अंडर हैंडेड। अब टू बी अंडर हैंडेड का मतलब अगेन दिस मीन्स टू बी अनफेयर, ठीक है। यहां आप ट्रिनिकल बॉसी हैं, नहीं बात सुन रहे हैं, दिस ऑल्सो मीन्स द सेम ओनली, पर मे बी आप सामने वाले की बात सुन रहे हैं, ठीक है। टू बी अंडर हैंडेड, ओके। अगर मैं एग्जांपल दूं कि it was really underhanded of your partner of telling you that your friends are waiting for you at the airport whereas they were not, ठीक है। तुम्हारे पार्टनर ने तुम पे ये जो प्रैंक खेला कि तुम्हारे फ्रेंड्स एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं और जबकि वो घर पे थे, तो ये क्या है, इट इज काइंड ऑफ अंडरहैंडेड, दिस इज नॉट फेयर, ओके। कमिंग टू कम अवे एम्प्टी हैंडेड। हिंदी में वो मुहावरा कहावत है ना, खाली हाथ आना खाली हाथ लौटना, वही वाला है यहाँ पे, ठीक है। when you have nothing to show, okay, when you have nothing to show despite of your hard work। अब empty handed का मतलब ये नहीं है कि आप बाजार को सामान लेने गए थे and you are returning empty handed and then you will say कि why do you always come empty handed। ये तब idiom नहीं लगेगा। This idiom is used in special situations and conditions when a person has given his blood, his money, his time into something, but in return he has not availed or he has not got what he was expecting। सिंपल सा सेंटेंस या सिंपल सा एग्जांपल दूं, कोई किसी ने स्टार्टअप शुरू किया, किसी भी चीज़ का स्टार्टअप है, उसमें उसने टाइम दिया, उसमें उसने अपना पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और 6-8 महीने देने के बाद कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला, सब लॉस में चला गया। सो इन दैट केस वी विल से दैट द पर्सन हैज रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड। मिस्टर रोहन हैड गॉन टू कनाडा बट ही रिटर्न फ्रॉम देयर एम्प्टी हैंडेड आफ्टर 2 years। 2 साल बाद खाली हाथ लौटे, ठीक है। A handful, this is my favorite। A handful means we use this idiom for person, okay, person who needs
somebody should always be there to keep an eye on him. ठीक है, जो कुछ ना कुछ mischievous activity करता रहे, mischievous is the right word, है ना, mischief करता रहे, उसके लिए हम बोलते हैं a handful. Like if I give you examples, I have 2 kids, both of them are handful because every time I have to keep an eye on them. Handful का मतलब तो लिटिल बनेगा कि हाथ भरा हुआ है, but over here the idiom says जो बच्चा या जो व्यक्ति बहुत mischievous है उसका ज्यादा ध्यान रखा जाए, ठीक है, कि कुछ गड़बड़ ना करते. To have only one pair of hands. Now this is used when the person is trying to say that I'm not multitasking, I cannot do multiple things at one time or in one go. ठीक है, the person is trying to say that he or she is not multitasking. जैसे अगर मैं बोलूँ that I am making YouTube videos, I am cooking food, and I am taking care of the kids also, and you want me to go and buy grocery also, so I have only one pair of hands. ठीक है, मैं ये भी कर रही हूँ, मैं वो भी कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ और आप चाह रहे हो ये भी करो, तो भाई ऐसा नहीं होगा, मेरे पास 2 ही हाथ हैं. हिंदी में भी मुहावरा है, 2 ही है हाथ मेरे पास. ठीक है. Again, this is very interesting one. When the left hand doesn't know what the right hand is doing. Little meaning है कि left hand को नहीं पता कि right hand क्या कर रहा है. ठीक है. This is used in case of when there is miscommunication or no communication. ठीक है, ओरिएंटेशन नहीं है, डिसओरिएंटेड है चीजें, है ना, डिसओरिएंटेड है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तब हम बोलते हैं when the left hand doesn't know what the right hand is doing. Let me give an example with this idiom. If I say that I went to the hospital where the senior doctor recommended me he prescribed me certain medicines, but his junior doctor said no to those medicines. So in such a case I can say that there the left hand doesn't know what the right hand is doing. ठीक है, the event failed drastically as the left hand didn't know what the right hand is doing. ठीक है, मैनेजर को नहीं पता था या इवेंट ऑर्गेनाइजर को नहीं पता था कि जो उसके बाकी के कर्मचारी वो क्या काम कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई ऑर्गेनाइज्ड काम नहीं था, डिसओरिएंटेशन था, मिसमैनेजमेंट थी, तब हम ये वाला इडियम यूज कर सकते हैं. ठीक है. To soil one's hands, to soil one's hands का लिटिल मीनिंग है कि हाथ में मिट्टी लगा लेना, है ना, to soil one's hand. But when somebody does something shameful, है ना, या कुछ dishonesty से related हो, है ना, तब आप यूज करेंगे to soil one's hand. अगर मैं बोलूँ कि I would not like to work with them or work with that organization as I don't want to soil my hands. I know that they are doing wrong, they are not the right people to work with, सही लोग नहीं हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, तो in that case I will say to soil one's hand या to soil my hand. I won't soil my hand. ठीक है. The last one says close at hand. Close at hand का मतलब है easily approachable. जब कोई चीज आपको easily मिल जाती है, जरूरी नहीं चीज ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं चीज ही हो, कोई व्यक्ति भी है ना, तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं क्लोज एट हैंड. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं that the police should be always close at hand with people, है ना, कभी भी कोई जरूरत है तो पुलिस हमेशा अवेलेबल है. So these were the idioms. I really enjoyed them teaching you. Please write down in the comment section which one is your favorite and do make a sentence out of it. Thank you for watching and being with me.